ہمارے فوٹوگرافرز، ہمارے کیمرے مین، ہمارے رپورٹرز اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ ان تمام جگہوں پر پہنچ کر انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں، نیوز گیدر کر رہے ہیں جہاں پر شاید ایک عام آدمی کی رسائی یا اس کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے. اور اس حوصلہ مندی کو مد نظر رکھتے ہوئے RIUJ نیشنل پریس کلب نے مل کے مشاورت کی. ہمارے سابق سینئر دوست طارق چودھری صاحب، ہمارے دیگر سینئر رہنماؤں نے اس ساری صورتحال کو دیکھا کہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی آئسولیشن وارڈ کو کور کر رہا ہے، اگر وہ کسی گھر کے اندر کوئی اطلاع ملنے پر انتظامیہ جا رہی ہے اور اس موقع پر رپورٹر اور کیمرے مین کا جانا بھی ضروری ہے، تو خطرے سے خالی نہیں ہوگا یہ سارا کچھ. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے فوری طور پر مختلف لوگوں سے رابطے کیے، وینڈر سے رابطے کیے، کمپنی سے رابطہ کیا، لیکن انفارچونیٹلی ایک رش سا بنا ہوا تھا. ملک میں ماسک کی قلت پیدا ہو چکی تھی، گلوز نہیں مل رہے تھے. ایسی صورتحال میں بھی ہم نے اپنی تئیں کوشش کر کے ان لوگوں سے رابطہ کیا جو کہ درد مند ہیں، اور انہوں نے ہمارے اس چندے، میں آپ کو سیریسلی بتاؤں میڈم صاحبہ، کہ ہم تمام دوستوں نے، کسی نے 1000، کسی نے 500، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق پیسے اکٹھے کیے اپنے دوستوں کے لیے. اور ہم نے ان صاحب کو رابطہ کر کے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ نے کٹ بنا کے دینی ہے، اور میں یقین کریں کہ ان کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے گا، کہ مارکیٹ میں جس ریٹ پر وہ چیزیں بن رہی تھیں انہوں نے کہا کہ جتنا مناسب ہو سکتا ہے آپ ہمیں بتائیں، آپ ریٹ بتائیں گے کتنے کا آپ افورڈ کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا بھی ہماری افورڈیبلٹی تو اتنی ہے. بڑے مناسب داموں میں انہوں نے ہمیں کٹس بنا کے دی. 1000 کٹس ہم لوگوں نے ابھی تک بنوائی ہیں، جو ہماری کوشش ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں وہ بڑی کمپریہنسو ہے. اب آپ دیکھیں گی کہ اس کے اندر ہیڈ شامل ہے، ہیڈ کور، ساتھ میں پوری آپ کی جو لوور اپر پارٹ ہے باڈی کا بیلٹ تک وہ کور ہے، گلوز ہیں، ساتھ میں ماسک ہیں. اور ہینڈ سینیٹائزیشن کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑی تفصیل یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے اب تک 3000 لوگوں کو ہینڈ سینیٹائزر تقسیم کیے. ساتھ ہی میں ہم نے کوئی 1000 کے قریب ماسک الگ سے اور گلوز ہم نے ان کو دیے ہیں. اور ایک اور سب سے بڑی بات، ہمارے نیشنل پریس کلب کے سابق صدر شکیل انجم صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، تمام ساتھیوں کی مدد سے 3000 سے زائد ہمارے دوست جو کہ بہت مشکل کے دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت بے روزگاری کے دور سے گزر رہے ہیں، تنخواہیں نہ ملنے کے مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کے گھروں میں راشن پہنچایا، اور خاموشی کے ساتھ. کسی کو نہیں پتا کہ کس کے گھر میں راشن گیا ہے. اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ جو ایمان کی طاقت ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ دینے والے ہاتھ کا پتہ نہ چلے وہ کس کو جو ہے وہ جا کے امداد دے رہا ہے. میں یہاں پر آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ساتھ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، یہاں پر موجود ہیں ہمارے ثناء اللہ گھمن صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہے پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کے، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا. جی کچھ نہیں تصور کو بن کا بلایا، آپ بول رہے تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اسٹیج پر تشریف لائیں. گھمن صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں پر آ جائیں. نہیں اب 3:10 پہ کریں، تھوڑا فاصلے پہ ہم نے اہتمام کیا فائدہ ہوا کوئی ہے. نہیں ہے. 50 ہو آپ تھوڑا سا چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں گھمن صاحب. اب تصور فائدہ کوئی نہیں ہے نا، بہت 3:10 پہ کریں. اس حوالے سے ہمارے کچھ مخیر حضرات سے بھی رابطے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جو کوشش کر سکتے ہیں، جس طرح سے مدد کر سکتے ہیں اس کمیونٹی کی، وہ کریں گے. لیکن اس سے بھی کہیں پہلے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی. ظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بڑے محدود وسائل ہیں ان کے پاس، بہت مشکل ہوتا ہے کہ تمام جو افراد ہیں یا تمام جو طبقات ہیں ان تک پہنچ کے ان کی مدد کی جائے. لیکن ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص تک پہنچے، کیونکہ ان کو 22 کروڑ عوام نے منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں لوگ کہ وہ ان کی بات سن رہا ہے، چاہے کوئی ڈیرہ غازی خان میں بیٹھا ہے، کوئی رحیم یار خان میں بیٹھا ہے، کوئی سندھ کے گوٹ میں بیٹھا ہے، کوئی بلوچستان کے واران میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پنجاب کے
किसी दूर अफ्तादा इलाके में बैठा हुआ है, कोई KPK में बैठा हुआ है, तो तमाम लोग इस बात, ईमन आज़ाद कश्मीर में बैठा हुआ, प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म है, तो हर बंदे की तवक्को होती है। उसी में सहाफ़ियों को गो के बड़े अफसोसनाक, वैसे मैं कहूँगा सच्ची बात, आज 23-24 साल बाद एहसास हो रहा है कि हमारा शुमार शायद इंसानों में भी नहीं होता, यानी कि रिपोर्टर, कैमरामैन, फोटोग्राफर को इंसान ही नहीं समझा जाता अनफॉर्चुनेटली। उनका ख्याल करने वाला, उनकी अगर वो बात भी करें तो उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। मैडम मिनिस्टर को हमने कम अज़ कम अपने करीब पाया है कि उन्होंने बात को सुना जरूर है, कर सकी है या नहीं कर सकी वो एक अलग बात है, लेकिन हमने अपनी बात जरूर उनके सामने रखी है। चंद दिन पहले भी हमने उनके सामने जाकर गुजारिशात की हैं कि तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से और जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसमें हमारी खुदारा मदद करें। उसकी रीज़न ये है कि आप मालिकान को चेक दे देंगी, पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था, आपको याद होगा हमने धरना दिया था पार्लियामेंट के सामने और आप लोगों ने मेहरबानी की थी, चेक इशू किए थे, लेकिन तनख्वाहें लोगों को नहीं मिली थी। तो इस दफ़ा मशरूत किया जाए, उसको हर सूरत में मशरूत किया जाए कि मालिकान को जो आप चेक देंगे उससे पहले सैलरीज के चेक इशू होने चाहिए। तमाम हमारे कैमरामैन को, तमाम रिपोर्टर्स को, तमाम फोटोग्राफर्स को पहले सैलरीज के चेक इशू होने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तारिक चौधरी साहब से, जी मैं अनवर रजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ ले आए और इज़हार ख्याल करें और मैडम को वेलकम भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशीर इलाक़ा मशरात के दोस्त सलाम साहब, सनाउल्लाह गुमन साहब, सदर RIUJ आमिर रियाज सैयद साहब, सेक्रेटरी आसिफ भट्टी साहब, बाकी दीगर मेहमान सलीम चौधरी साहब और जितने मेरे दोस्त मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैडम बड़ी मुख्तर बात करूँगा। यकीनन हम तो अपने कहीं जो कर सकते हैं वो करते हैं, करते रहेंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। एक बड़ी खुशाइन बात है कि जब भी पाकिस्तान पर कभी कोई आफत आई है, ज़ल्ज़ले की सूरत में हो, कोई और नुकसान हुआ हो, कोई वबाई अमराज फूटे हों, तो हमारी कौम मुत्तहिद हुई है, तमाम सारे इख्तिलाफ़ात भुलाकर हम एक हुए हैं और इस एक होने की वजह से हमने उस वबा पर, उस ज़ल्ज़ले पर और कोई भी मुसीबत जो हो उस पर हमने यकीनन काबू पाया है। बिलाशुबा मीडिया क्राइसिस आपके सामने है और हमें दुख और अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि हमारा जो हमारी निगाहें होती हैं वो हुकूमत पर होती हैं, लेकिन मार्केट के साथ हुकूमत ने हमेशा जो जर्नलिस्ट हैं उनके जो मसाइल हैं उनको पसे-पुश भी रखा और आपने हमेशा जो मालकान है शायद आपका टिप उनकी तरफ ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से हमें भी नुकसान हुआ। आपको ये रिक्वेस्ट है कि ये क्राइसिस तो इंशाल्लाह गुजर ही जाएगा और हम अपने कहीं जो कर सकते हैं वो करते रहेंगे, लेकिन जो इस वक्त हमें मसाइल दरपेश हैं उनमें बिलखसूस जो तनख्वाहों की अदम अदायगी है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर 10 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही। आप ज़रा सोचिए कि जिन लोगों को 10 माह से तनख्वाह नहीं मिली वो लोग अपने घर का किचन कैसे चला रहे होंगे, अपने बच्चों की फीसें कैसे अदा कर रहे होंगे और जो रोज़ाना की बुनियाद पर उनके अखराजात हैं वो कैसे वो उसको हल कर रहे होंगे। यकीनन इसका इदराक हमें है क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं और उनसे जुड़े रहने की वजह से हमें उनके मसाइल का इदराक है और चूँकि हमें उनके जो मसाइल का इदराक है हम आपके गोशगुजार करते हैं कि आपको भी उनके मसाइल का इसी दर्दमंदी से हल निकालना है। हमने हमेशा आपको रिक्वेस्ट किया और आपने हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर भी किया है और आपने अपने तक जितनी कोशिश कर सकती हैं की है, लेकिन हमें मालूम है कि जो मीडिया मालकान हैं वो एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हुकूमत भी उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होती है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं और हमारे मसाइल हल करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिस तरह आसिफ अली भट्टी ने कहा कि हुकूमत माँ की हैसियत रखती है, तो आपको चाहिए कि हम चूँकि एक सनत की हैसियत इख्तियार कर चुका है मीडिया इंडस्ट्री, तो आपको हमारे मसाइल भी हल करने के लिए उसी तरह इक़दाम करने चाहिए जिस तरह आप हाउसिंग को देखते हैं, जिस तरह आप स्टील मिल के मसाइल को देखते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी हमारे मसाइल को उसी तरह देखें ताकि उसको फिर और हल किया जा सके। और दूसरी बात आपसे करना चाहेंगे कि गैर बकाया आपसे रब्ता भी रहा और हमने आपसे रिक्वेस्ट भी की कि जो आपके पास किट्स हैं, जो मास्क हैं, वो भी आप मीडिया इंडस्ट्रीज में तकसीम करें, क्योंकि आप इसको नेशनल प्रेस क्लब या RIUJ की तरफ न देखिए। हमसे कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर जो प्रेस क्लब्स हैं, जो यूजेज हैं, वो यकीनन हमारी तरफ देखती हैं और उनका मकसद होता है कि हम वफाक में बैठे हुए हैं और हम उनके मसाइल आपके सामने गोशगुजार करें, आपके सामने रखें ताकि आप उनको हल कर सकें। तो जितने यहाँ पर जिनसे हमने रब्ता किया उन्होंने हमारा साथ दिया इस किट्स ये बनाने में और मास्क का आपको बताऊँ कि भट्टी साहब 5000 मास्क, 5000 ग्लव्स और कम से कम 1000 से ज़्यादा जो सैनिटाइजर हैं
वो RSUJ और जर्नलिस्ट पैनल ने तकसीम किए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। इसी तरह हमारा ये फर्ज है कि जो हमारे दोस्त मुश्किल में हैं हम उनकी मुश्किल को हल करें और हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो भी कर सकते हुए करेंगे। और हम यही तवक्को मैडम फिरदौस आशी का आवाज़ से भी रखते हैं क्योंकि आप दर्द रखने वाली खातून हैं और हमारा और आपका निज़ाम हमेशा रहा और आपने हमारे बहुत सारे मसाइल हल भी किए और हम इसीलिए हमारी जो तवक्को होती है वो आपसे बहुत ज़्यादा होती है। और मैं आखिर में आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि हमारे जितने मसाइल हैं वो तनख्वाह के हों, वो जबरी बेदखलियों के हों, वो इस वक्त मीडिया का क्राइसिस जो है वो उसके खात्मे के हवाले से हो, लेकिन आप उनको न सिर्फ हल करने की कोशिश करेंगे बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक भी पहुँचाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। बात यह है कि हर शख्स अपनी इस्तेदाद के मुताबिक एक दूसरे की हेल्प कर रहा है और अनवर भाई आपने जिस तरह इनिशिएटिव लेके यूनियन RSUJ के साथ मिलके इस वक्त आप इलेक्शन की तैयारी में मैंने उसको प्रिंट भेजा, बावजूद प्रिंट निकाल के कैंपेन की है, प्रिंट निकाल के ले आए, व्हाट्सएप जाने के लिए कोशिश की है। इस पर आप बिलाशुबा कराजी तहसील के मुस्तहिक हैं। मैं बिला ताखीर कोशिश करूंगा कि तमाम दोस्त जो कि यहाँ मौजूद हैं उनको जो आज हमारा मकसद है कि हम किट्स तकसीम करें और मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा को जो कि खुद रज़ाकाराना काम के हवाले से समाजी खिदमात के हवाले से अपना रिकॉर्ड रखती हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे असद शर साहब KTN न्यूज़ से तशरीफ लाए हुए हैं कि वो तशरीफ लाए, हम किट्स की यहाँ पर रूनुमाई पहले करवा दें। जी करा दें। हाँ, मैं शाह साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब्बास साहब इधर आ जाओ ऊपर। हाँ जी, इधर दिखाएं ना टेबल पर जी। मैं मैडम साहबा आपकी और तमाम दोस्तों की देखने के लिए कि हमने किस तरह से ये किट्स तैयार करवाई हैं। अब्बास साहब यहाँ टेबल पे इधर रख देना, आगे रख। ये सामने जरा दिखाएं प्रेसिडेंट साहब। और ये जो किट है दूसरी वाली, ये हमारी किट है जेंट्स के लिए दिखाई। ये वहाँ टेबल पे रखें, ख़वातीन के लिए भी हमने बनवाई हैं साथ में। जी मैं करता हूँ। शिराज गर्देजी साहब होंगे, शिराज गर्देजी साहब तो आए ना जरा डेमोन्स्ट्रेट करें आके सामने आ जाए, सामने ये जरा पेन नहीं है, जैकेट उतारें पर ठीक है मैडम। ये पूरी किट आप देख पा रहे हैं कि ये एक महफूज किट है जो कि मीडिया के नुमाइंदे जब फील्ड में जाएंगे तो हेड भी कवर है इसमें और साथ ही में ग्लव्स के हवाले से और बाकी मास्क के साथ मौजूद है। और साथ में वो दिखाएं जरा ये जो पैक हमारा, उस पैक के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं ये भी दिखाएं जरा। इसमें हैंड सैनिटाइजर है, इसके साथ ग्लव्स हैं, ये पहले से किट के साथ में ये जो पूरा हेड कवर है और बॉडी कवर है ये लेडीज कलर की डिफरेंस हमने रखा है। पहले तजवीज़ थी पिंक रखा जाए मैडम, फिर हमने कहा कि नहीं ज्यादा डिस्टिंक्टिव नहीं होना चाहिए फील्ड के अंदर क्योंकि काम करना होता है। तो मैं बिला ताखीर रिक्वेस्ट करूंगा जनाबे मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा से कि वो ये जो हमारे RSUJ ने किट्स बनवाई हैं काइंडली इनकी साथियों के साथ तकसीम शुरू करें। मैं असद शर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा KTN न्यूज़ से जी 10 साल डब्बा एक डब्बा फोन कर दे कर जल्दी कर इधर से रास्ता भी छोड़ दें। मैडम आप चेयर को थोड़ा एक तरफ से दाखिल होते जाएं और उधर से गुजरते जाएं। जी असद शाह साहब तशरीफ ले आइए। जी शाह साहब
चलो निकलो शिराज गर्देवी साहब जियो न्यूज से। शराज जल्दी आ शराज आप चलें वकास साहब तस्वीरें ने रचना बनाई तस्वीरें ये फिर क्या वकास जल्दी आ वकास 92 से। वकास जल्दी आ जमील साहब अब तक हाँ जी वकास आ हारून साहब चल वकास जीएनएन से। आपने हारून साहब जीएनएन से। हारून साहब नहीं है। यही सब यही सब मैंने रिक्वेस्ट की थी कि दोस्त आप आ जाएं। जी। आगे नेक्स्ट ठीक है चले चले देखें राजा शौकत साहब रायल न्यूज से। जरा क्विकली करते जाएं, टाइम बहुत कम है। बस आज राजा भाई उधर देखो शाही साहब आप हो गए। चले राजा चले गुलाम मुर्तजा जट साहब हिल टाइम से। ओ यार ये किट उठा इधर से नीचे से मरियम मलिक साहिबा 92 से। मरियम साहब आई नहीं है। अलीना बकार जियो टीवी से। मिस अलीना बकार। बस इसे इन्हें अलीना बकार लेडीज है अच्छा लेडीज मैं दोनों खवातीन को रिक्वेस्ट करूंगा रास्ता दे दे प्लीज उनको आने का। जल्दी आए जी मरियम साहिबा को और अलीना बकार साहिबा को तशरीफ ले आएं। आगे नेक्स्ट चला दीजिए चलो वो आगे जल्दी अस्मा आए साहिबा तशरीफ ले आएं। मरियम जल्दी आओ जरा जल्दी आ जाएं। जल्दी आओ ना आप लोग तो फील्ड में इतनी क्विक होती है, यहाँ पे कितनी स्लो है। मैडम आप चले जी चले चलो मरियम आसिया कोसर जीएनएन से। चलो जाएंगे उधर एक मिनट चलो आएंगे मुबारक हो चले आएंगे जाफर बल्ती साहब रोजनामा इस्लाम से। दो लेडीज यहाँ पे जी जी एक और जाफर बल्ती साहब आओ अच्छा मुबारक हो आपको ये पहननी भी है उधर देखो फील्ड में। चले चले ये लेते थैंक यू हाँ जी जाफर साहब आए जाकर भाई आज जल्दी आ जाइए मुबशर नवाज साहब एपीपी से। आए हमारे फोटोग्राफर मामू तशरीफ लाएं और अपनी किट वसूल करें। तालियां भी। उधर से आए जी इजहार न्याली साहब। इंतजार नहीं सब बोल देंगे इजहार न्याली साहब क्योंकि हर वक्त फील्ड में मौजूद रहते हैं। जल्दी आओ खुरम मलिक साहब। समझा करो ना इधर इजाज ना कराओ पैसे दवाई चले सरदार शौकत साहब। सरदार साहब आए जी सरदार साहब जल्दी आए जल्दी सरदार जरा जल्दी अभी प्लीज। बशीर उस्मानी साहब। भाई साहब थोड़ी किटी चल रही है आए सरदार साहब सरदार रफीक साहब। राना साहिब। राना साहिब साहब। सगी चौधरी साहब राना साहिब साहब। शेख आरिफ साहब। चौधरी साहब इधर आओ ना तो अच्छा अच्छा नीचे से उठाएंगे भाई भाई इधर मैडम चौधरी साहब आते चलते जाए क्विकली 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 बहुत लोग हैं। चले चले अरे साहब आओ उधर देखो उधर गुलाम रसूल साहब या प्लीज। आ जाए आ जाए आ नसीम जाए साहब। फोटोग्राफर नसीम। ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोग जो है ना हमारे दोस्त जो हर वक्त फील्ड में होते हैं और इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनके लिए जरा शकील साहब को आगे करो शकील साहब आगे सर आगे सर आगे सर शकील भाई इधर आओ शेख आरिफ क्यों ना यार कोई अफजल से करें चलें वकास फोटोग्राफर हमारे पीआईडी से।
हम सरकार को भी साथ में प्रोटेक्ट करें ना। जैन हाशमी केटू से, जैन हाशमी साहब, मोहम्मद अनवार अब्बासी साहब उर्दू से, आजे आजे आप आजे प्लीज बारी बारी आए। चले फासला भी बरकरार रखें। फराह हम टीवी से राशन के साथ तकसीम कर रहे हैं। फराह मौजूद है यहाँ पे। हमारे पास सब आए आजे आराम से आराम से। चले फिर से रश ना बनाए प्लीज, रश ना बनाए, निकल गए यार। चल ध्यान उधर देख उधर चले चल चल यार देना के जल्दी से आ जाए फरा आ जाए, रास्ता दीजिए उनको। चले उधर देखो चले निकले ये ले ये भी पकड़ा 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 चले हाँ पता है चल जल्दी आ जल्दी जल्दी आ आज से कमरान चौधरी साहब इधर से आए, इधर से तशरीफ ले आए। अनवर भाई ये इधर राइट साइड से आ जाए। कैसा भी करो ना, चलो लेडीज को मैडम नहीं ये लेडीज की नहीं है। इधर इधर से आइए, सदर साहब से ले लें आके आप। इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से। हाँ हाँ इधर से। मैडम ये Thank you. राव सकी साहब मेरे से आगे ये बस 3 खवातीन बैठी हैं, इनको भी बुला लो। आयशा बैठी हैं। भट्ट साहब कमरान चौधरी साहब हो गए जी। कमरान चौधरी साहब जाहिद भाई पटी साहब क्या खवातीन को बुला दो बुला लो। सबा मैडम आयशा और वो ये सबा आयशा सबा APP से हमारी है साइमा। जी, साहिबा साहब अभी चलो चलो जी और तीन खवातीन को बुला के बात करें, इनको बुला के ना मेरा बात करें, फाइंड आउट कर दें इसको। जी मलिक साहब हमारे सीनियर फोटोग्राफर। चले आयशा टिकट दें सर जय श्री राम। मैडम आयशा को दो चले आयशा जी भी यही हाँ जी सब देखो जाहिद तबस्सुम साहब तशरीफ ले आए। चले चल भाई आओ जी इजाजत बासी साहब भी आ जाए। नवाब दादा साहब चले जी चले हाँ जी चले जी बस। जवेद साहब जब ये इतना फोटो लगेगा ना और मेहमान आ रहे हैं। चले चले जावेद उनके हाथों से भी आप लोगों को केक मिल जाएगी। प्लीज तशरीफ रखिए। चले 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 यार जाहिद साहब लेट हूँ मैं, आसिफ लेट हूँ प्लीज। मैडम ये हमारे APNS के प्रेसिडेंट हैं जाहिद तबस्सुम मैं साहब। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपनी सीटों पे तशरीफ रखें, नशिस्तों पे तशरीफ रखें। जनाब मैं मोहतरमा दोस्त आशिक अमान साहबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ लाई हैं और उन्होंने तकसीम की हैं किट्स। मैं तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। मोबाइल तो डाला चले आ गई है नहीं कितनी देर तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फासला बरकरार रखें प्लीज। ये टीवी पे जब जा रहा है तो लोग बुरा मनाएंगे कि आप लोग खुद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें और खुद इकट्ठे खड़े हुए हैं। प्लीज मेहरबानी करें, शाह साहब आप भी थोड़ा साइड पे हो जाएं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है भाईजान प्लीज आप आगे तशरीफ ले जाएं, प्लीज आगे तशरीफ ले जाएं, पीछे फासले पे खड़े हो जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरमा फिरदौस आशिक अमान साहिबा को कि वो तशरीफ लाएं और हुकूमत की तरफ से जो एफर्ट हो सकती है हमारा ये उनसे गुजारिश है कि वो हुकूमत की तरफ से भी खुसूस तौर पे ऐलान करें। जी माइक इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल प्रेस क्लब के सदर, जनरल सेक्रेटरी, एग्जेक्टिव मेंबरान, RIUJ के मेरे काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ीन, मीडिया के यहाँ तशरीफ़ फरमा
ओहदेदारान और मेंबरान, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले रज़ा आपको, सजाद साहब आपको, आसिफ भट्टी आपको, आपकी सारी टीम को मुबारकबाद दूंगी कि आपने अपने साथियों के दर्द को महसूस किया और उनकी इस मुश्किल का एहसास किया और उस एहसास और दर्द के रिश्ते के साथ जुड़ा ये अमली कदम जो आज आपने उठाया, ये इस बात की तरफ इक्कासी करता है कि जब कहीं मुश्किल वक्त आता है किसी भी कौम में, तो उस कौम के तमाम शोबे एक दूसरे की तरफ देखने की बजाय वो अपनी ताकत को यकजा करके एक दूसरे के हामी और मददगार बन जाते हैं, और यही मुजाहरा आपने किया है। मैं आपकी इन काविशों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मुझे ये पता है कि इस वक्त जो कोरोना के ख़िलाफ़ सबसे मौसर और हरावल दस्ते का किरदार हमारा मीडिया वर्कर अदा कर रहे हैं, और जो मीडिया वर्कर है वो अपनी जान हथेली पे लेके हर उस जगह पे मौजूद है जहां कोरोना के मुतासर शख्स के अजीज़ो कारब और रिश्तेदार भी मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों को जिस लगन, दयानतदारी और ईमानदारी से अदा कर रहा है, वो इस बात की तरफ इक्कासी करता है कि आप सिर्फ मीडिया वर्कर ही नहीं, रिपोर्टर ही नहीं, सहाफ़ी ही नहीं, बल्कि इस कौम के माथे का झूमर है और इस कौम के बेटे होते हुए इस धरती का कर्ज अदा करने में मसरूफ़ अमल है। मैं इस वबा के साथ जुड़ा जो चैलेंज है वो भी आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर में वो अक़वाम जिनका हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था, वेरी वेल डिफाइंड था, वेरी वेल प्लान था, रिसर्च ओरिएंटेशन उनकी अप टू द मार्क थी, और जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज से मुज़य्यन वो शोबा तिब जो थे वो इस वबा के सामने ज़मीन बोस हो चुके हैं, और दुनिया की जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा पूरे का पूरा ग्लोब जो है वो लड़खड़ा चुका है, और कोरोना से पूरी दुनिया की मईशत की सांसें उखड़ चुकी हैं। और ऐसी सूरत हाल में ये अशद ज़रूरी है कि हम दुनिया पे भी नज़र रखें, रीजन को भी बारीक बीनी से देखें कि वहाँ क्या हो रहा है हमारे खिते में, और फिर अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मीडिया की आंख जो है और मीडिया की जो स्क्रीन है वो दुनिया का हर रूप देख भी रही है और बयान भी कर रही है, लेकिन हमें अपने घर की सबसे ज़्यादा फिक्र करनी है कि हमारा घर इस महफूज अंदाज से किस तरह यकीनी बनाया जा सकता है कि हम इस वबा को भी रोकें, इसके बचाव के लिए भी एहतियाती तदाबीर करें, तो इसके साथ साथ इसके मनफी असरात जो हैं
جو آپ کی معیشت پہ، جو آپ کے روزگار پہ، جو آپ کے ڈے ٹو ڈے ایشوز پہ رونما ہو رہے ہیں، ان سے کیسے نکلنا ہے۔ اور میڈیا جو ہے وہ دو محاذوں پہ حکومت کے ساتھ مل کے معاون اور ساتھی بنے۔ آج میرا نیشنل پریس کلب کے اندر آپ سب کی موجودگی میں جو اپیل کرنے کا مقصد ہے کہ ایک محاذ ہے جس سے ہم نے کرونا کے خلاف لڑنا ہے، اور وہ محاذ اس وقت تک کامیابی سے ہم جیت نہیں سکتے جب تک میڈیا شعور اور آگاہی کے ذریعے، میڈیا کی سکرین کے ذریعے، ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے، آپ کے پیپرز کے ذریعے اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بار بار احتیاط کا درس نہیں دیں گے، کیونکہ ایک واحد احتیاط ہی اس وبا کے خلاف مؤثر ہتھیار ہے۔ اور اس بیماری سے، اس وبا سے، اس دشمن سے جو سب سے پہلے چیلنجز جو اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کر رہا ہے وہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں۔ آپ نے دنیا بھر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز جو کرونا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ان کو اپریسیشن ملتی ہے، ان کو اونرشپ ملتی ہے، ان کو معاشرہ جو ہے وہ ہیرو کے طور پہ کریڈٹ دیتا ہے۔ میڈیا میں ہمیں ان ہیروز کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا ہے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جو موت کے محاذ پہ ہر وقت موت کو شکست دینے میں مصروف عمل ہیں۔ دوسرا محاذ جو بے روزگاری کا، غربت اور افلاس کے ساتھ جڑا مالی مشکلات کا، اس میں آصف بھٹی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، نواز رضا نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی کہ یہ پہلے سے جو مشکلات کا شکار ہمارا طبقہ تھا، صحافی برادری، وہ کرونا کی وبا کے باعث اور زیادہ مشکلات میں جکڑا گیا، اور اس کو سپیس دینے کے لیے، اس مشکل سے نکالنے کے لیے حکومتی سطح پہ جہاں باقی شعبوں کے لیے بیل آؤٹ پیکج متعارف کرائے جا رہے ہیں، وہاں میڈیا ورکر کے لیے بھی ہماری کنسلٹیشن جاری ہے۔ اور آج بھی جو کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی ہے اس کی میٹنگ 3 بجے سے جاری ہے۔ مجھے اس میٹنگ میں پہنچنا ہے، لیکن چونکہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی آواز اس کمیٹی تک پہنچانا اور وہاں آپ کے حقوق کے لیے لڑنا، یہ میری ذمہ داری ہے اور آئینی اور قانونی فرض بھی ہے، کیونکہ یہ میرا پورٹ فولیو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں میں آپ سے یہ توقع کروں کہ آپ لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچائیں، حقائق بر وقت پہنچائیں، لوگوں کی آواز جو ہے حکومت کے کانوں تک پہنچائیں، اور حکومت کے جو لوگوں کے فلاح و بہبود اور ویلفیئر کے پروجیکٹ اور انیشیٹو ہیں اس سے عوام کو آگاہ کریں، تو وہاں آپ کے جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کا تدارک کرنا بھی میری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ جو آپ کا کٹس کی فراہمی کا عمل ہے، یہ ہم نے سب سے پہلے انٹر منسٹریل کانفرنس
और एक वीडियो लिंक के ज़रिए इनिशिएटिव लिया और तमाम सूबाई हुकूमतों के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को इसमें एंगेज किया और एक ऐप बनाई कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान भर में गिलगित बल्तिस्तान और इवन AJK में कोई सहाफ़ी खुदा न खास्ता कोरोना से मुतासर होता है तो वो इस ऐप के ज़रिए अपने आप को एनलिस्ट करे। हम पाकिस्तान भर में बसने वाले तमाम सहाफ़ी और उनके अहले खाना के इलाज मुआलजे और तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। अभी तक किसी ने उस ऐप के अंदर आल्दो कि मुझे पता है कि सहाफ़ती बरादरी से अब तक पाकिस्तान भर में कोई 9 सहाफ़ी हैं जो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने अभी तक उस ऐप से अपने आप को अटैच नहीं किया। एक तो काइंडली उस ऐप को डाउनलोड करके हर प्रेस क्लब में अपनी सहाफ़ती बरादरी को उससे रोशनास कराएं ताकि आपकी मुश्किलात हम तक पहुँचें। और प्रेस क्लब आपकी नुमाइंदा तंजीमें हैं और यहाँ बैठी जो आपकी लीडरशिप है ये आपकी आवाज़ है। तो मैं उस ऐप के ज़रिए भी चाहूँगी कि आपके मसाइल हम तक बर वक्त आएँ ताकि उसका बर वक्त तदारक हो। दूसरी चीज़ जो तमाम प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ बैठ के हमने कंसेंसस किया था कि NDMA की मदद से हम आपको ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो पहुंचाएंगे। NDMA की कमिटमेंट थी और वो कमिटमेंट स्टैंड करती है, लेकिन जब मैंने उन मीटिंग्स में बैठ के डॉक्टर्स की ज़रूरियात को देखना शुरू किया, एमरजेंसी में ड्यूटियां देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस, क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड्स में दिन रात कोरोना के मुतासरीन की मदद के लिए मसरूफ़ अमल डॉक्टर्स, उनको जब देखा तो उनकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा अहम थी। तो चेयरमैन NDMA ने ये फ़ैसला किया कि पहले मरहले में हमें जिन्होंने इमीडिएट हैंडलिंग करनी है उनको ये सहूलत देने दें। उनका ये ऑपरेशन जो है इस हफ्ते मुकम्मल होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोरियर्स के ज़रिए, आपने देखा कि सूबाई हुकूमतों को वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जाता था लेकिन वो कहती थी कि हमें नहीं मिला। ये फैसला हुआ कि ये कोरियर्स के ज़रिए हर हॉस्पिटल तक डायरेक्टली उस MS तक पहुंचेगा ताकि ये गुंजाइश ही ना रहे कि भाई वहाँ डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स और नर्सिस को, तिब्बी अमले को ये नहीं मिली सहूलत। इस हफ्ते वो ऑपरेशन मुकम्मल होगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम अपने प्रेस क्लब्स के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और सूबाई हेडक्वार्टर्स में और फिर यहाँ इस्लामाबाद में हम सहाफ़ती बरादरी को वो प्रॉपर इक्विपमेंट पहुँचाना शुरू करेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं जो अहम हैं। मैं किट को देख रही थी, ये 100% सिक्योर और प्रोटेक्टिव किट नहीं है, लेकिन ये चूँकि एक कोशिश है आपकी, इस कोशिश को हमने खराज तहसीन पेश करना है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए वो 100% वो तमाम हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करे, जो आपको वाकई प्रोटेक्ट और सिक्योर करे और वो आपकी हेल्थ सेफ्टी को इंश्योर करे। और वही किट जो है कोरोना के महाज में आपको महफूज बना सकती है। और इंशाल्लाह उसके लिए मैं जो हम NDMA से कर सके हम करेंगे। NDMA अगर डॉक्टर्स की ज़रूरियात की वजह से कहीं मेरी सहाफ़ती बरादरी के लिए प्रायोरिटी सेट ना कर सका तो हम मुहैयर हजरात की मदद से, अपनी मदद आपके तहत हम ये प्रोटेक्टिव किट्स जो है मैं आपके पास लेके आऊँगी और आपको
हर हाल में पहुंचाऊंगी कि क्योंकि इस पे कोई कोताही हो नहीं सकती, क्योंकि जहां हमें 22 करोड़ आवाम को इस मर्ज से बचाना है, वहाँ सबसे अहम जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इस मर्ज के ख़िलाफ़ मीडिया, उसको भी महफूज बनाना है। दो अहम चीज़ें जो हुकूमती सतह पे मैं चाहूँगी कि आप तक पहुँचे, इसका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ये माइकों में घुसी जितनी डस्ट है, ये भी एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है और पता नहीं ये किस किस के मुंह से आप उठा के लाए हैं। इसके लिए भी कोई हमने सैनिटाइजेशन का काम करना है। एक जो हुकूमती सतह पे आज कदम उठाया गया है वो आपका इकोनॉमिक क्रंच और डेली वेजर के साथ जुड़ा एक ऐसा मुस्बत कदम है जो हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की हदायत पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिराद देने के लिए टैक्स लॉज अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस 2020 जो है वो मुतारफ करा दिया है, लॉन्च कर दिया है और वफाकी काबीना ने इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। मैं चाहूँगी कि इस ऑर्डिनेंस के जो चीदा पॉइंट्स हैं कि ये क्यों लाया गया, सबसे अहम इस वक्त इस ऑर्डिनेंस को लाने की जो ज़रूरत है वो ये है कि आप इस वक्त जो हर चीज़ बंद होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जो हमारा मज़दूर, मेहनतकश और लेबरर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी है, उसको रोज़गार के मौके फराहम किए जाएं। इसके साथ साथ जो हमारा इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े दीगर कोई 40 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सर्टन SOPs के तहत खोला जाए और जो आज चीदा मिरात जिनका ऐलान किया गया है उसमें नंबर 1 बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स जो था उसको ख़त्म कर दिया गया है। फी मरबा फुट, फी मरबा गज, यानी दोनों में से जिसकी भी बुनियाद पे वो फिक्स टैक्स का नफाज किया गया था, ये यानी वो रजीम थी पूरी, ये अभी प्रेस रिलीज़ में हम आपको सर्कुलेट कर देंगे, इसको ख़त्म कर दिया गया है। सेक्शन 111 आमदनी की वजाहत से इस्तिस्ना करार दे दिया गया है और इसके साथ साथ चूँकि सेक्शन 111 का जो इतलाक था वो मंसूबों में पैसे या ज़मीन में इन्वेस्ट की गई कोई भी सरमायाकारी जो है उस पे ये लागू नहीं होगा और बशर्ते ये कि ये शराइत पूरी हों। वो शराइत भी बहुत अहम है ये प्रेस रिलीज़ की शक्ल में, क्योंकि जो रिलीफ दिया जा रहा है उस रिलीफ को सर्टन SOP का पाबंद किया जा रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं, कुछ रेगुलेशंस इम्पोज की गई हैं और बहुत सारे इंसेंटिव के साथ साथ एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म भी मुतारफ़ करवाया गया है। कंपनियों या ओनर्स और OPs यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस जो है उसके तहत जो सरमायाकारी की सूरत में सेक्शन 111 से
इस्तिस्ना की शराइत जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए तय कर दी गई हैं, और इसके साथ साथ जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस ऑर्डिनेंस में मुतारफ़ कराए हैं, इसके अंदर सेल्स टैक्स की कवानीन में तरमीम की गई हैं, और फिनांस एक्ट 1989 जो है उसमें भी तरमीम की गई हैं, और जिसके तहत वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद में CVT से इस्तिस्ना, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये ऐलान कर दिया गया है। ये इसकी फ़ोटो कापीज़ ऑर्डिनेंस की आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। दूसरा जो अहम तरीन इशू जो है वो आज वॉलंटियर फोर्स और टाइगर फोर्स के हवाले से मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने देखा कि एक वॉलंटियर आप हैं जिन्होंने आज अपनी मदद आपके तहत यहाँ किट्स डिस्ट्रीब्यूशन की। दूसरे वॉलंटियर्स जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने टाइगर फोर्स की शक्ल में 1 मिलियन से ज़ायद लोग उसमें रजिस्टर हुए हैं, और उसमें सहाफ़ियों की भी कसीर तादाद शामिल है। इस टाइगर फोर्स को यूटिलाइज करने के लिए फील्ड में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रमज़ान से पहले फील्ड में इस टाइगर फोर्स को उतारने का फैसला किया। रमज़ान से पहले ये टाइगर फोर्स फील्ड में 4 अहम काम करने जा रही है। एक जो इसका सबसे पहला और अहम काम होगा कि ये स्ट्रीट लेवल पे, मोहल्ले की सतह पे, देहात की सतह पे और इर्द गिर्द अपने समाज के उस सर्कल में जहां लोग अभी तक कोरोना के फैलाव की वजूहात से आगाह नहीं, ये उन लोगों को अवेयरनेस देंगे, शऊर देंगे, आगाही देंगे और उनको उसके बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर बताएंगे। दूसरा काम जो ये फोर्स करेगी, जो हमारा पैरामेडिक्स, नर्सिस और डॉक्टर्स की टीमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, लेकिन हमारे रूरल हेल्थ सेंटर्स, BHUs, THQ वगैरह यानी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, उनके अंदर ये रज़ाकार उन पैरामेडिक्स, नर्सिस और डॉक्टर्स की एफर्ट्स को सप्लीमेंट करेंगे एज अ वॉलंटियर्स। तीसरा काम जो है राशन और फूड सप्लाई, जो यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए पैकेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया और रमज़ान से पहले उनको वो तमाम 19 आइटम, क्योंकि इससे पहले 5 आइटम पे यूटिलिटी स्टोर की तरफ से रिलीफ था, प्राइम मिनिस्टर ने 19 आइटम फर्दर जो है उसके अंदर एडअप किए और 19 आइटम पे दिया गया रिलीफ जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर स्टॉक मौजूद है कि नहीं, वाकई उतनी सब्सिडी वो यूटिलिटी स्टोर आवाम को दे रहा है कि नहीं, और अगर कहीं कोई किल्लत है, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो वो ज़िम्मेदारान तक पहुंचाने में ये रज़ाकार अहम किरदार अदा करेंगे। फूड एंड राशन सप्लाई जो इनका चौथा काम होगा कि वो मुहैयर हजरात और फिर हुकूमत पाकिस्तान और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब मिल के जो आवाम को राशन
اور غذائی اشیاء کی ترسیل ہے اس کو عوام کے گھروں تک پہنچانے میں یہ نیٹ ورک بن کے بجائے اس کے کہ لوگ ان ضلعی دفاتر میں آئیں یا مخیر حضرات کے پاس آئیں، یہ خود چل کے رضاکار ان مخیر حضرات کی مدد سے، حکومت کی مدد سے عوام کے گھروں تک پہنچیں گے اور ان کو یہ فوڈ سپلائی انشور کریں گے۔ چوتھا جو پانچواں اہم کام رپورٹنگ میکنزم کا جو آپ کر رہے ہیں، یہ والنٹیئرز بھی ان دیہات سے، گوٹ سے، گراس روٹ لیول پہ جہاں کہیں گیپ ہوگا اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ تک پہنچائیں گے، ہم تک پہنچائیں گے، تاکہ کوئی بھی ان اٹینڈڈ نہ رہے اور کوئی بھی ایسا شخص جو کرونا کا متاثر ہے لیکن اس کی رسائی یا اس کی آواز حکومت تک یا میڈیا تک نہیں پہنچ رہی تو یہ رضاکار اس میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پہ چونکہ دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہر بڑے سے بڑی ڈیولپڈ نیشن نے اس لاک ڈاؤن کے اثرات محسوس کیے ہیں، میں دنیا سے اپیل کرنا چاہتی ہوں آج کے موقع پہ کہ خدا را آپ کو صرف چند ہفتے اس لاک ڈاؤن سے گزرنا پڑا ہے تو بلبلا اٹھے ہیں اور ان کشمیری بہن بھائیوں کو سوچیں کہ جو 246 دن ہو چکے ہیں جو لاک ڈاؤن میں ہیں، تقریباً 8 ماہ کا عرصہ ہے، ان میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ تو آج جب آپ اپنی اذیت اور اپنی تکلیف کو محسوس کریں تو اس درد میں کشمیری بہن بھائیوں کے درد کو ضرور یاد کریں، اور وہ بھی آپ اپنے گھروں میں ہیں، سکون سے ہیں، کوئی 9 لاکھ فوج گن تانے آپ کو زبردستی جبر سے گھروں میں قید کرنے پہ مجبور نہیں کسی نے کیا ہوا۔ آپ بول سکتے ہیں، آپ کے پاس کمیونیکیشن ٹولز ہیں، آپ کی ایک دوسرے سے رسائی ہے، لیکن کشمیریوں کو دنیا سے کاٹا گیا ہے اور ان کی آواز دنیا کو سنائی نہیں دے رہی۔ پریس کلب کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ایک دفعہ پھر میں یہ اپیل کرتی ہوں کہ اس مشکل میں اپنے ان بہن بھائیوں کی مشکلات کو ضرور یاد کریں۔ میں ایک سیمپل کے طور پہ کچھ کٹس جو این ڈی ایم اے سے ریکویسٹ کر کے ایک پرائیویٹ ڈونر کو انوالو کر کے سیمپل کے طور پہ لائی ہوں۔ اسی طرح کی کٹس ہم دیکھیں گے، کیونکہ ابھی تک میں نے کھول کے یہ نہیں دیکھی ہیں، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ لاؤ تاکہ جو ساتھی ہمارے رہ جائیں گے ایک سسٹم کے تحت پرائرٹی سیٹ کر لیں کہ یہ کٹ کس کو پہننی ہے۔ ہر صحافی کو یہ کٹ نہیں پہننی، ہر صحافی کی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اس صحافی کی ضرورت ہے جس نے ایمرجنسی کوارنٹائن یا آئسولیشن وارڈ میں جانا ہے۔ باقی صحافیوں صرف ماسک پہ گزارا کر لیں تو جو اصل جن کا کام ہے یہ ان تک اس کٹ کی رسائی کو یقینی بنائیں۔ مجھے رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ 5000 میں نے کٹیں ڈسٹریبیوٹ کی، 5000 صحافیوں کو ماسک آپ ضرور دیں ان کو، لیکن کٹ صرف ہم نے ان کو دینی ہے جنہوں نے اس ڈیوٹی پہ جانا ہے، اور وہ لسٹ آپ پریس کلب ہمیں بنا کے دے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم ہر چینل کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے یہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ان صحافیوں تک پہنچانا شروع کر رہے ہیں۔ اور مجھے اس کے لیے آپ سب کا تعاون اس لیے چاہیے کہ یہ کوئی لگژری آئٹم نہیں ہے، نہ یہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کوئی پریویلیجڈ
آپ کا وہ ایک کہہ لیں سپورٹ ہے کہ جو اعزاز ہے جس نے پہن لی اس کو ستارہ امتیاز مل جانا ہے. یہ جس کو ضرورت ہے اس کو دیں اور اس سے آپ کا وہ ساتھی زیادہ بہتر پروٹیکٹڈ ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کو ہم اور زیادہ مؤثر اور زیادہ افیکٹو انداز سے اس کے سر سے لے کے پاؤں تک ہر اس کا ہاتھ ہوں، سار ہو، جسم ہو، پاؤں ہوں، ٹانگیں ہوں، وہ پروٹیکٹ ہوں. یہ نہیں ہے کہ صرف میں اس کے منہ کو پروٹیکٹ کر لوں اور وائرس وہ نیچے سے لے آئے. یہ ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ چلانی ہے اور یہ بھی ایک میڈیکل سائنس ہے اور اس کے لیے ہم نے مل کے کام کرنا ہے. آپ کی سپورٹ سے پی ایف یو جے، آر آئی یو جے، پریس کلبز، صحافتی تنظیمیں، تمام وہ صحافی میری باڈیز جہاں جہاں بیٹھی کام کر رہی ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ یہ لیڈری بھی ٹھیک چلے گی اور ان کا تحفظ بھی یقینی بنائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں آپ کو شکر گزار ہوں. یہ کسی ایک کو پہنا دے. کسی ایک صاحب میں ویسے آپ کو ایک بات کہوں گا کہ آپ کو ہمارے اس بلاوے پہ خیال آ ہی گیا ہے تو آپ نے یہ ہماری 50 کٹس منگوائی ہیں میم صاحبہ نے اور ساتھ میں ماسک بھی ہیں جو کہ یہ صرف ایک وہ ہے آپ کا یعنی یہ N95 ماسک ہے لیکن یہ N95 اس کو جانا ہے جس نے فیلڈ میں جانا ہے. یہ آپ کو ہینڈ اوور کر رہی ہوں میں لیکن یہ آپ نے خدا رہا عام صحافی کے استعمال یہ میڈیکیٹڈ ماسک ہے. یہ شوقیہ پہننے کے لیے نہیں ہے. اور یہ نیچے گر رہی مقبول سائڈ پہ ہو جو مقبول بھائی میں میڈم نے بہت اچھا موقع تلاش کیا نظام اور پورے سسٹم کے ساتھ ایک منٹ یار پلیز پلیز ماسک ذرا یہ دکھائیں گے میڈم ٹھیک ہے میری بیٹے میں میٹنگ میں واپس آ جاؤں میڈم یہ چیزیں نہیں سنبھالو یار یہ مارکس کو بھی رکھیں چھوڑ دیں تشریف رکھیں گے تمام دوست پلیز. میں طلب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آپ نیچے آئیے دو میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وقت رش بن گئی یہاں پر. آپ ہمارے محترم مہمان ہیں پلیز تشریف لے کے آئیے. آپ بیٹھے آگے آپ ادھر بیٹھے نا یہ دفتر سب ادھر آپ آگے چلے گئے. تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. ادھر ہاں شکر کو ادھر آپ ادھر ادھر میں
तमाम साथी मुतवज्जे हो, अभी बहुत सारे दोस्तों के नाम बाकी हैं जो कि तला साहब कहीं मीटिंग में थे, शहर से बाहर थे, स्पेशली तशरीफ लाए आप लोगों के लिए। मैं स्टेज पे रिक्वेस्ट करूंगा तमाम दोस्त तशरीफ रखें, रश्ता बनाएं। तो तला साहब अभी तशरीफ ला चुके हैं। हमने इनसे भी दरख्वास्त की थी कि वो जो इस सिलसिले में अपनी खिदमत पहले हमेशा से हमारे दोस्तों के लिए वो हाजिर रहे हैं, खिदमत किया उनकी, हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा जनाब शकील अंजुम साहब से कि वो उनको खुश आमदीद कहने के लिए तशरीफ लाएं। शकील अंजुम साहब बैठ जाए सब दोस्त, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी किट्स तकसीम करके बैठ जाए। इन सारों को